Hello everyone, welcome back to the new video. So in this video we will discuss about the new question. ठीक है, ये indefinite integration का एक और नया क्वेश्चन हम यहाँ पर लेकर आए हैं, जिसमें कि एक नया टाइप का क्वेश्चन in which you have to solve with the method जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा. In this series of the mathematics indefinite integration, जिसमें कि अलग अलग तरीके के क्वेश्चन means covering all the types of the questions will be covered here. Okay, we will be covering each kind of the question. जो डिफिकल्टी हम क्वेश्चन में फेस करेंगे, जो नई टाइप रहेगी क्वेश्चन की, एवरीथिंग विल बी डिस्कस विद इन द 10 to 15 minutes of video. So let's focus. Okay, eventually you will get one playlist. Okay, I will create one playlist जिसमें कि सारे क्वेश्चंस आपको एक सीक्वेंस वाइज मैं यहाँ पे आपको अरेंज करवा के दूंगा. बाय दैट you will get all the required types of question for completing your whole indefinite integration. Understood? So yeah, let's start. It's showing the indefinite integration of under root x minus 5 upon x minus 7 dx. So how we will solve this? Look, in the last question we have seen about using the formula kind of a and b. ठीक है, a और b दो यूज करते थे हम, जिसमें कि a टाइम्स हम डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करते थे प्लस कोई कांस्टेंट और b लेते थे. ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस में आप कैसे कर सकते हो? इफ यू वांट टू फर्स्ट एक चीज माइंड में आ सकती है कि रैशनलाइज करके देखें. नो, बट रैशनलाइज से आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होगा. वाई? बिकॉज x प्लस 7 से ऊपर और नीचे अगर आप मल्टीप्लाई डिवाइड अगर करोगे भी, ओके, तो डिनोमिनेटर का आपका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, लेकिन न्यूमरेटर में आपको स्क्वायर रूट मिलेगा. इट विल बी ऑलवेज देयर, सो इट विल माइट क्रिएट सम डिफिकल्टी. सो लेट अस डू विद अनदर वन मेथड. ओके, सो लेट अस विदाउट रैशनलाइजिंग वी विल ट्राई टू रिमूव द स्क्वायर रूट फ्रॉम द where numerator. So how we will do that? It will be rewritten as under root of x minus 5 upon x minus 7 multiplied with under root of x minus 5 upon x minus 5. So what will happen, like the x minus 5 का square यहाँ पे बन जाएगा under root का, so it will be remain as x minus 5 divided with x minus 7 and multiplied with x minus 5. Okay, this whole thing is under square root. Why we are doing this? Because we know one formula like integration of क्या पता है हमें? Integral of 1 upon under root of x square minus a square. ये चीज हमें एक फॉर्मूला जो होता है ये हमें पता होता है. Okay, this is a standard formula. That's why we will try to make this question into this form. Okay, this will be beneficial for you. क्या है हमारा मोटो और लॉजिक ये करने का, ये भी पता होना चाहिए while solving the question. Not the only solution is important. Okay, so let us move. So let us write x minus 5 in terms of a times differentiation of this denominator, that is x minus 7 x minus 5. क्या बन जाएगा? एक quadratic x square minus 3 5 35 x. Okay, sorry, it's not a 35, it's a 12x. Okay, it's a 12x plus 35. Okay, this will be a quadratic. Okay, इसका d by dx करना पड़ेगा. Clear everyone? Plus some constant b. What you will get? X minus 5 is equals to a times differentiation करो, क्या बनेगा? 2x बनेगा minus 12 बनेगा. Clear है? ठीक है, कोई डाउट? No. Plus b. Okay, इससे आगे कैसे सॉल्व होगा? How you will solve that? You will solve a 2ax बनेगा minus 12a plus b. ओके, अब x का कोएफिशिएंट LHS और RHS में सेम करो. ठीक है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है? 1. यहाँ पर क्या है? 2a. सो 2a is equals to 1. You will get a is equals to 1 upon 2. अब कॉन्स्टेंट्स को इक्वल करो. कॉन्स्टेंट क्या है यहाँ पर? minus 12a plus b. सो minus 12 टाइम्स ऑफ a की वैल्यू पुट करो 1 upon 2 plus b इज इक्वल्स टू हियर कि आप ही कितना है? माइनस 5. माइनस से माइनस, ओके, माइनस से कैंसिल मत करो बिकॉज यहाँ पे माइनस हमने ब्रैकेट से बाहर नहीं लिया है पूरे. ठीक है, इट्स ओनली फॉर दिस -12. सो लेट अस फर्स्ट रिजॉल्व दिस.
क्या बनेगा ये -6 बनेगा, -6 प्लस b इज इक्वल टू रिमेन एज -5. फाइन. So your b will be what? 6 minus 5. It will be 1 simply. So until now you are getting that a is equals to 1 upon 2 and b is equals to 1. Clear till now? Okay. So let us rewrite the question. Question को फिर से लिखो. क्या लिखते हैं हम इसे? It's equals to integral of a times of differentiate a times of a क्या है आपका और ऊपर क्या होता है न्यूमरेटर में? न्यूमरेटर में क्या होता है? इट्स अ डिफरेंशिएशन ऑफ दिस. यू कैन सी हियर. सी व्हाट वी हैव रिटन x minus 5 इन टर्म्स ऑफ दिस. सो हम न्यूमरेटर को इसके फॉर्म में लिखेंगे एंड डिनोमिनेटर वैसे के वैसा ही रहेगा. ये हमारा क्वेश्चन है कि नहीं? तो इसको कैसे लिखोगे आप? a टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ द डिनोमिनेटर. क्या बना था डिफरेंशिएशन आपका डिनोमिनेटर का? 2x -12, राइट. डिफरेंशिएशन बना था ये प्लस b, ओके, डिवाइडेड विथ व्हाट? x -7 मल्टीप्लाइड विथ x -5 एंड इसका होल स्क्वायर रूट. हमने क्या किया है? सिर्फ और सिर्फ हमने न्यूमरेटर को इसके फॉर्म में चेंज किया है. a टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, दैट्स इट. अब a और b की फटाफट वैल्यू पुट करो और इसको सिंप्लीफाई करो. प्लस के टर्म्स में सबसे पहले इसे स्प्लिट करेंगे. क्या बनेगा? a आपके पास कितना है? 1/2 है. ओके, 1/2 को बाहर लेकर आओ. क्या बचा ऊपर? 2x -12 अपॉन अंडर रूट ऑफ x -7 मल्टीप्लाइड विथ x -5 dx, राइट. प्लस b क्या था आपका? 1 था. 1 मल्टीप्लाइड विथ क्या बचा है फिर? 1/√ऑफ x स्क्वायर -12x प्लस कितना था? 35 dx. फाइन, दैट्स इट. नाउ इफ यू टेक दिस x, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो. इफ यू टेक इट एज x यू विल गेट दिस एज अ dx. ओके, so if you take it as a t you will get this as a dt. So you can rewrite this as integral of 1/2 root t dt. फाइन. अगर कोई यहाँ पे डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. फाइन. नाउ व्हेन यू इंटीग्रेट दिस वी गेट 1/2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ 1/√t, ओके, dt. यू विल गेट t टू द पावर क्या बनेगा? ये -1/2. सो t टू द पावर -1/2 प्लस 1, t टू द पावर 1/2. ओके, 1/2 नीचे आ जाएगा. 1/2 कैंसिल. यू विल गेट ओनली √t. ओके, प्लस कोई कांस्टेंट एक c1. ओके, चलो ये चीज हो गई हमारी. नाउ यहाँ पर बढ़ते हैं. यहाँ पर क्या बनेगा? सबसे पहले हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर करना पड़ेगा. हाउ यू विल डू कंप्लीटिंग स्क्वायर? x² -12x प्लस 35. इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के फॉर्म में लेकर जाओ. कभी भी अगर यहाँ पर कोएफिशिएंट बोल रहा हूँ, अगर न्यूमरेटर में अगर आपको 1 दिख रहा है और नीचे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 100% आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पर बनेगा. गेटिंग? सो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो x² -a², x² प्लस a² माइनस x² इसके फॉर्म में ही हमेशा होता है. दैट्स व्हाई वी विल ट्राई टू मेक दिस इन द फॉर्म ऑफ दैट सिमिलर टू आवर स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज. सो फॉर दैट वी आर कंप्लीटिंग द स्क्वायर हियर. अब कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे होता है? अगर मैं चाहूँ, ये 12x है, राइट. ओके, सो अगर किसी को पता नहीं है तो एक बार फिर से देख सकता है. 2ab प्लस b². मुझे अगर इस फॉर्म में अगर चाहिए a माइनस b का होल स्क्वायर अगर यहाँ पे बनाना है मुझे, ठीक है, इसे भी, तो a आपका x है एंड 2ab जो है आपका वो क्या है? 12x. a को आप x पुट कर सकते हो. 2xb इज इक्वल टू 12x. तो आपका x कैंसिल हो गया. b क्या बच गया आपका? 12/2 दैट इज 6. तो आपको क्या चाहिए? b² चाहिए a माइनस b का होल स्क्वायर बनाने के लिए. लेकिन यहाँ पे 36, 6 का स्क्वायर 36 आएगा नहीं, तो प्लस 36 करो माइनस 36 करो. अंडरस्टैंड? प्लस 36 यूजफुल है. 35 माइनस 36 क्या बन जाएगा? -1. तो इक्वेशन को कैसे लिख पाओगे? x² माइनस 12x प्लस 36 माइनस 1, राइट. ये 35 और ये माइनस 36 क्या बन गया? -1. नाउ यू कैन राइट दिस थिंग एज x माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 1. गेटिंग? दैट्स इट. तो क्या बनेगा आपका? I2 will be integral of 1 upon
अंडर द रूट ऑफ x माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर dx. फाइन. नाउ यू नो द फॉर्मूला इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. होता है कि नहीं? होता है. ओके. So what you have to do here also, you can take this x minus 6 as complete capital X and इस 1 को मान लो एक a. ठीक है, तो इसकी जगह सिर्फ ये आपको पुट करना है, सिंपल. ओके. सो यू विल गेट, एक बार इसका फॉर्मूला चेक कर लेना. ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से लिखना है. सो यू विल गेट log ऑफ x की जगह x माइनस 6 पुट करो, तो x माइनस 6 लिख लिया. ओके. प्लस क्या करना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब जो यहाँ पर टर्म होती है वही चीज पूरी की पूरी, ओके सॉरी, ये स्क्वायर रूट के अंदर जो यहाँ पर डिनोमिनेटर में वही चीज आपको यहाँ पे उठाकर रख दी है, तो जो यहाँ पर डिनोमिनेटर में वही चीज यहाँ पर उठाकर रख देना, दैट इज एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 1. ओके. सो दिस विल बी योर आंसर. आई थिंक यहाँ पे 1/2 होता है, आई डोंट नो, यू कैन चेक. ओके. दिस द फॉर्मूला. यहाँ पे 1/2 है, नहीं है, ये आपको चेक करना है फॉर्मूले से. व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो हियर, योर फाइनल इंटीग्रेशन I विल बी इक्वल्स टू योर I1 प्लस I2. ओके. I1 क्या आया था, रूट टी आया था, प्लस ये क्या आया, log ऑफ x माइनस 6 प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 1. दैट्स इट. दिस वॉज यूर आंसर. एंड हमने टी को किसको सपोज किया था, जो हमारी क्वाड्रेटिक थी. क्या थी क्वाड्रेटिक, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 प्लस दिस I2. दिस इज योर कंप्लीट इंटीग्रेशन I. ओके. दिस इज द वेरी बेस्ट मेथड, द फास्टेस्ट मेथड. एक्सप्लेन करने के वक्त मुझे 10 मिनट लगे, 8 से 10 मिनट. सॉल्व करने के वक्त सिर्फ 1.5 से 2 मिनट ही लगेंगे, इससे ऊपर नहीं लगेगा. अगर आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस की है तो 100% क्वेश्चन जो इस तरीके से है आप उसको इजीली डिजाइन कर सकते हो आपके स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस के अकॉर्डिंग. सो आई होप यू अंडरस्टैंड, यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो रियली, शेयर विद योर फ्रेंड्स. follow here, follow me on Instagram. Subscribe to this channel for the more such amazing mathematical video. See you till the next video. Thanks for watching. Bye bye.